Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। इंग्लिश फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ये जो चैनल है इंग्लिश फॉर यू, आपको इस पे इंग्लिश सब्जेक्ट की सारी जानकारी दी जाएगी। सारा एनसीईआरटी बुक और ग्रामर रिलेटेड प्रॉब्लम बताया जाएगा। हर एक चैप्टर आपको अच्छे से समझाया जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी में और इंग्लिश टू इंग्लिश में भी। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये चैप्टर है क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि जो महीना चल रहा है अभी अप्रैल, सेशन शुरू हो जाना था, लॉकडाउन के कारण से अभी तक किसी भी स्कूल में सेशन शुरू नहीं हो पाया है। तो मैं सोचा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लर्नर का थोड़ा सा हेल्प कर दूं। आप लोगों को जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आएगा, जो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, आप हमें कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा दिया गया ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। This chapter is the first chapter from NCERT book of class 6, and this chapter is from the book Honeysuckle, and this is main course book. Who did Patrick's homework? Here in this chapter we will know the method or know who did Patrick's homework. Before we go through the chapter, I would like to describe some facts about this chapter. Patrick is a boy who hated homework very much, and he used to play instead of doing his homework. And now we should go through the chapter. This is the first paragraph. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. In the first paragraph, we know that Patrick is a boy of school. He is a school going boy, and he never goes to his school by completing his homework. He never goes to his school by doing his homework completely. He's always told, he give an excuse beside his homework that the homeworks are too boring, and instead of doing homework he used to play hockey, basketball and video game. Even the teachers who taught him in his class always told him that he would be very poor in his studies if he don't do his homework, and he would not able to learn a thing in the class if he is not doing his homework or he will not does his homework. Because if he doesn't do his homework, then there will be no progress in him. This is the fact that Patrick also want to do his homework, want to complete his homework, but how can he do his homework? What could he do? He also feel
himself very bad, but what could he do, because the reason that due to which he didn't do his homework was that he hated his homework very much. तो पहले पैराग्राफ में मैं जैसा कि आप लोगों को बताया, पैट्रिक स्कूल जाता था तो कभी वो अपना होमवर्क पूरा करके नहीं जाता था। कारण क्या था? होमवर्क उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी। वो होमवर्क करने के बदले हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था, निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो यह एक वीडियो गेम का नाम है। और उसके टीचर हमेशा उसको कहते थे, बेटा होमवर्क किया करो। टीचर समझाते थे कि होमवर्क क्या करो, अदर तुम बहुत कमज़ोर हो जाओगे, तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। पैट्रिक का खुद का भी मन होता था होमवर्क करने का, लेकिन वह करे तो करे क्या, वह कर ही क्या सकता है। इसके कारण से वह भी होमवर्क करना चाहता था, लेकिन था क्या, रीज़न क्या था? वह होमवर्क इसलिए नहीं करता था क्योंकि होमवर्क से उसको नफरत सी हो गई थी। वह पढ़ने से भागने लगा था। He was going out through his studies. He was not taking interest in his homework, so he hated his homework very much. And after that, the second paragraph. Then one day he found his cat playing with a little doll, and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. At all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." And in the second paragraph, we read that one day when he was playing, he found that his cat was playing with a doll. He snatched the doll that he found that his cat was playing with that. He snatched the doll from the cat, but when he snatched the doll, he found that that was not a doll, that was a man of tiniest size wearing an old-fashioned shirt with a hat in the head. When he snatched that small man, the tiniest size of the person, he was very frightened from the cat, and he asked Patrick to that he asked Patrick don't give him again to that cat because he was very frightened from the cat. इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या समझा कि एक दिन क्या होता है, पैट्रिक का जो कैट होता है, पैट्रिक का कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रहा होता है। यहाँ कैट दिखाया गया है पिक्चर में। तो यह पैट्रिक का कैट क्या होता है, छोटे से डॉल के साथ खेल रहा होता है। पैट्रिक का नज़र उस पर जाता है। पैट्रिक क्या करता है, कैट से वह डॉल को छीनता है, स्नेच करता है, कैच करता है, वहाँ से हटाता है। तो जैसे उस डॉल को डॉल समझ के जैसे पैट्रिक उस डॉल को वहाँ से हटाता है, पैट्रिक सरप्राइज्ड हो जाता है। सरप्राइज्ड इसलिए होता है क्योंकि वह जो छोटा सा रहता है वह डॉल नहीं होता है, वह एक छोटा सा आदमी होता है छोटे साइज का, जो कैट से बहुत डरा हुआ रहता है। पुराने फैशन का उलन शर्ट पहना हुआ होता है और वह चिल्लाता है, पैट्रिक से विश करता है, पैट्रिक को कहता है, पैट्रिक के रिक्वेस्ट करता है पैट्रिक से कि क्या करो, मुझे उस कैट से बचा लो, और अगर तुम मुझे कैट से बचाओगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा कोई भी एक विश पूरा कर दूंगा। और दोबारा नहीं देने के बदले
कैट के पास दोबारा पैट्रिक उसको नहीं दे दे, उसके बदले उसने क्या किया, पैट्रिक से प्रॉमिस किया कि वह पैट्रिक का कोई भी एक विश पूरा कर देगा। एंड नाउ कम टू पैराग्राफ थर्ड। Paragraph third is that Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he had only, if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do good enough job, I could even get A grade. Here in the third paragraph, this paragraph found the problem that Patrick had. The problem of Patrick was that he was not doing his school homework. He was going to his school without doing his homework, and the tiniest size of man that is which the throne his cat was playing with, he found that the man promised him to grant a wish, and this wish was the solution for the problem of Patrick. तो तीसरे स्टेंजे में क्या हुआ, पैट्रिक को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या मिला, वो छोटे साइज का जो आदमी मिला, उसने पैट्रिक से क्या विश किया, मैं तुमको क्या करूँगा, कोई भी तुम्हारा एक विश पूरा कर दूंगा। और पैट्रिक का प्रॉब्लम क्या था, वह स्कूल जो जाता था, स्कूल का होमवर्क क्या करता था, नहीं बनाता था। और स्कूल का होमवर्क नहीं बनाने के कारण स्कूल में टीचर से डांट सुनना, खुद भी अच्छा नहीं लगता था इसको कि बिना होमवर्क बनाए स्कूल चले जा रहा था, इसके कारण इसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन करता क्या है, इसको होमवर्क से नफरत सी हो गई थी। तो इसने उस छोटे से आदमी को, टीनियस साइज का जो मैन था, उससे यह क्या बोला, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम मेरा एक ही काम कर दो, तुम क्या करो, मेरा सारा का सारा होमवर्क बना दो। तो सारा का सारा होमवर्क बनाना कब था, जब तक सेमेस्टर का एंड होता तब तक उसको सारा होमवर्क बनाना था। सेमेस्टर के एंड तक होमवर्क बनाना था और सेमेस्टर में 35 डेज बचा हुआ था। तो उसने बताया छोटे से आदमी को कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर देते हो तो मुझे ए ग्रेड आ जाएगा। एंड the little man, face wrinkled like dishcloth thrown in a hamper, he kicked his legs and doubled his face and grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. When the little man heard the wish of Patrick, he was enormous. He was angry. But what could he do? There was no option for the little man because he had promised Patrick a wish that he will complete, he will do anything, any one wish of the Patrick. So, and Patrick asked him to do his homework till the end of the semester, that was 35th days remaining. तो चौथे पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा, इस पैराग्राफ से हम लोगों को क्या जाना कि जब छोटे से आदमी को पैट्रिक अपना प्रॉब्लम सुनाता है, पैट्रिक अपना विश बोलता है कि तुमको क्या करना है, 35 दिन होमवर्क बनाना है। क्या करना है, 35 दिन होमवर्क बनाना है, ठीक है। तो जो छोटा सा जो आदमी रहता है पूरा गुस्सा जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कपड़े को मोड़ के फेंक दिया गया हो, कपड़े को मचोड़ करके फेंक दिया गया हो। फिर भी लेकिन करता क्या, उसने पहले ही पैट्रिक से क्या किया था, पैट्रिक को ऐसा समझा दिया था, ऐसा बता दिया था कि तुम अगर मुझे कैट के पास नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, एक विश पूरा कर दूंगा। और उसकी मजबूरी थी एक विश पूरा करने की। तो क्या कर रहा है पैट्रिक, वह विश उसका पूरा कर रहा था। पैट्रिक को क्या करना था, वह विश पूरा करना था उसका। तो वह छोटे से आदमी को पैट्रिक का विश पूरा करना था, तो जिसके कारण वह राजी हो गया, वह एग्री हो गया कि वह उसका जो होमवर्क है उसके सेमेस्टर के एंड तक वह सॉल्व कर देगा। नाउ कम टू
paragraph 5th, and this is what in the paragraph 5th we come to know that, and true to his words, that little elf began to do Patrick homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed always know what to do, and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. In the 5th paragraph, we will know that when the little man agreed to complete the homework of Patrick, but there were many problems to the elf in doing Patrick's homework, because he was unknown of Patrick's subject, because from where the elf was belonging there were no subjects like Patrick, and this was the reason why the little elf was angry in doing homework. And when he was doing homework, he needed help in many way, and when he found any problem, he used to make a loud sound, help me, and Patrick would have to help in whatever way he have. There were many difficulties Patrick had to help, but there was no option for Patrick, because the elf was doing his homework, and due to this problem Patrick had to help the elf. And the reason was that the elf was not knowing any subject that Patrick was reading, and Patrick helped him in every bit that the elf needed. 5वें पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा? क्या सही था कि जो छोटा आदमी था, जो एल्फ था, वह मान गया। क्या करने के लिए मान गया था? पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए मान गया, लेकिन पैट्रिक का होमवर्क करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? उसको प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि जहाँ से वह आया था, जहाँ से वह बिलोंग करता था, वहाँ वो सारा सब्जेक्ट नहीं था जो सब्जेक्ट पैट्रिक का था। जो सब्जेक्ट पैट्रिक को पढ़ना होता था वह सारा सब्जेक्ट इल्फ का नहीं था, जिसके कारण से उसको बहुत सारा प्रॉब्लम आता था। और जिस भी वर्ड में जहाँ भी प्रॉब्लम आता था तो इल्फ क्या करता था? चिल्लाना शुरू कर देता था, हेल्प मी करके वह चिल्लाना शुरू कर देता था, और पैट्रिक को उसका हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि पैट्रिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। पैट्रिक के पास ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि पैट्रिक खुद होमवर्क से हेल्प करता था, और वह छोटा सा आदमी जो एल्फ था वह इसका होमवर्क कंप्लीट करता था, और पैट्रिक को भी होमवर्क कंप्लीट करवाना था, जिसके कारण से वह उसको हेल्प करते जा रहा था। और अगर किसी वर्ड का प्रॉब्लम आ जा रहा था, किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ जा रहा था, तो पैट्रिक को क्या करना होता था? उस वर्ड को डिक्शनरी लाना होता था, डिक्शनरी में ढूंढना होता था, फिर जाके उस एल्फ को समझाना होता था। तो पैट्रिक अभी तक कर क्या रहा था? पैट्रिक अभी तक अपना खुद का होमवर्क कर नहीं रहा था। पैट्रिक अपना होमवर्क तो कर रहा था, लेकिन वह छोटे से आदमी क्या कर रहा था? पैट्रिक का ही काम पैट्रिक से करवा रहा था, जो पैट्रिक को भी पता नहीं था। When it comes to math, Patrick was out of luck. What a timetable! The elf shrinked. We elves never need that. और जब मैथ्स की टाइम आई, पैट्रिक का बैड लक चल रहा था। ऑलरेडी पैट्रिक का बैड लक ही चल रहा था, क्योंकि इल्फ तो मान गया था होमवर्क करने के लिए, लेकिन इल्फ को सब्जेक्ट समझ में आ नहीं रही थी। बेचारा पैट्रिक करता क्या? पैट्रिक को इल्फ का हेल्प करना पड़ रहा था। जैसे ही मैथ्स का सब्जेक्ट आया, फटाक से वह इल्फ पूछ डाला। किससे पूछ डाला?
पैट्रिक से पूछ डाला। क्या पूछ डाला? व्हाट आर टाइम टेबल्स? टाइम टेबल्स के बारे में इल्फ को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इल्फ को कभी इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं थी। When the subject maths came, Patrick was out of luck because Ilf never needed that mathematics in his subject, and he was unaware of timetable. That is why Patrick was out of luck, or Patrick luck was very bad, and he had to help the Patrick. Patrick had to help the Ilf because he wanted to complete his homework, because he needed a grade in the end of semester. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Else knows nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a sorter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो क्या हुआ मैथ्स में? वह टाइम टेबल्स तो पैट्रिक जो इल्फ को लाया था, इल्फ को अपने कैट से बचाया था, और जो इल्फ जो होमवर्क कर रहा था, पैट्रिक के सब्जेक्ट से कंप्लीट अनअवेयर था। वह उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान रहा था। वह एडिशन नहीं जान रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं जान रहा था, डिवीजन नहीं जान रहा था, फ्रैक्शन नहीं जान रहा था। वह हल्ला करना शुरू कर दिया था, पैट्रिक पे चिल्लाना शुरू कर दिया था, पैट्रिक को गाइड करने के लिए बता रहा था। और the elf was also not knowing anything about his subject. He was not knowing history. History was mystery for the elf, and the little elf was just going to just become as like the master, the teacher of Patrick, and Patrick was unaware of this, that the elf was making his homework from him. मतलब पैट्रिक का होमवर्क वह इल्फ पैट्रिक से ही बनवा रहा था। इसकी जानकारी पैट्रिक को नहीं थी। वह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन में उसको प्रॉब्लम आ रहा था। वह पहले से ज़्यादा बोल्ड हो चुका था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था पैट्रिक पे कि जहाँ से होता है वहाँ से तुम बुक ढूंढ करके लाओ, लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से बुक लाओ, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मुझे पढ़ाओ, और मेरे लिए पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम मुझे समझाओगे नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा नहीं। और धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ था, पैट्रिक गॉट एंड there was a situation that Patrick became a good learner. Patrick became a good student, that Patrick was unaware of that. इस कारण से पैट्रिक को एक आदत लग गई थी, पैट्रिक का एक हैबिट हो गया था बुक ढूंढना, बुक इल्फ के लिए पढ़ना। वो उसको खुद नॉलेज हो रहा था, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो अपने लिए पढ़ रहा था। उसके दिमाग में यह बात नो पैट्रिक बिकेम गुड स्टूडेंट फ्रॉम विच पैट्रिक वॉज अनअवेयर। पैट्रिक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन चुका था, क्योंकि इल्फ के लिए उसको खुद मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा था। नाउ कम टू पैराग्राफ सेकेंड। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. And as I have discussed above, that Patrick became a good learner, he became a good student. This was the matter, as a matter of fact, this was the matter of fact that the elf made Patrick a good student, good learner. To solve problems of elf, Patrick had to read overnight, and due to this, he was very tired, and he was just like that.
he was in any trouble. He was always trying to solve every problem of Ilf, and due to this, he have to stay a, a, alive during night. पूरी पूरी रात उसको जगना पड़ रहा था, जिसके कारण से वह सुबह स्कूल जाता था तो आँख फुला फुला रहता था, जस्ट स्लिपरी एंड पफ्ड एंड ब्लीडी। तो क्या हुआ था, इस सब कारण से इल्फ का प्रॉब्लम ढूंढने के कारण से पैट्रिक को क्या हो गया था, बहुत अच्छा स्टूडेंट पैट्रिक बन चुका था, जिसके कारण से उसको पूरी पूरी रात जगनी पड़ रही थी। और उसके वजह से वह क्या हो रहा था, स्कूल जब जाता था तो आँख फुला हुआ रहता था और ऐसा लगता था कि वह पूरी रात सोया नहीं है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली slipped out of the back door. And finally the time got end, the semester got end, and the elf was free to go, and he went from Patrick's home slowly out from the door. क्या हुआ, फाइनली सेमेस्टर का लास्ट डे आया, स्कूल अराइव, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, सेमेस्टर का लास्ट डे आया स्कूल में, और जो था इल्फ वह जाने के लिए फ्री था, वह जा सकता था, क्योंकि उसका जो कंडीशन था कि पूरा सेमेस्टर 35 डेज का सेमेस्टर बचा हुआ था, तब तक उसको होमवर्क करना था, तो वह उसका टाइम पूरा हो चुका था, जिसके कारण से वह पैट्रिक के बैकडोर से उसके घर से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room and his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. In this day, the elf stayed with him. The elf was with him. Elf make a habit of Patrick that he had to learn overnight. He had to solve his problem by himself. He has to go to the library and come to the home with the book, and he have to read. For the elf, due to this, Patrick developed a habit. There was a habit developed in Patrick that he became a good learner, good student, and at the end of semester he got A grade. His all classmates were amazed. His teacher smiled and praised him. His parents were surprised that how Patrick got A grade. He was now the model kid of his school. After that, he cleans his room. He was completely changed Patrick. The Patrick, as I have discussed in the first paragraph, that Patrick hated his homeworks, Patrick hated reading, Patrick was always playing, Patrick was a bad boy, and in this time I am going to tell you that Patrick now became the good student, good learner, and this was the reason which make Patrick good was the elf. The elf developed many good habits in Patrick, that he was reading, he was just focusing on his studies. तो क्या हुआ, जब सेमेस्टर लास्ट हुआ पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, उसके सारे क्लास में सरप्राइज थे, उसके टीचर सरप्राइज थे, और पैट्रिक के प्रशंसा भी के, पैट्रिक का प्रेज के, और उसका पेरेंट्स भी सरप्राइज था पैट्रिक को कैसे ए ग्रेड आ गया। अब पैट्रिक पहले वाला पैट्रिक नहीं था, जो पैट्रिक पढ़ना लिखना छोड़ के हमेशा खेलता रहता था। पैट्रिक एक अच्छा लड़का बन चुका था, और वह अपना रूम क्लीन करके अच्छे से, पहले पैट्रिक से कुछ भी पूछा जाता था तो हमेशा गुस्सा में रहता था। अब पैट्रिक में सारा कुछ एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया था, जैसा कि एक अच्छे स्टूडेंट में होता है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, but
I will share you a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. कैरोल मोर। तो एक सेक्रेट है। एक सेक्रेट क्या है? पैट्रिक जब एक ग्रेड मिल गया पैट्रिक को, पैट्रिक का सेमेस्टर खत्म हो गया, फिर भी पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि वह छोटा एल्फ जो था वही इसका सारा होमवर्क किया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वह छोटा एल्फ जो था वह सारा होमवर्क पैट्रिक से ही करवाया, जिसकी पैट्रिक को जानकारी नहीं थी। पैट्रिक को लग रहा था सारा होमवर्क वो कर रहा है, लेकिन पैट्रिक क्या कर रहा था? अपना होमवर्क खुद कर रहा था, जिसकी पैट्रिक को पता नहीं थी। एंड दिस इज द सेक्रेट बिटवीन यू एंड मी। मीन्स आप जो सुन रहे हैं, आपके और मेरे बीच में ये सेक्रेट है। यह कैरोल मोर बताया है, जो आप लोग सुन रहे हैं इस बात को, और मैं जो आपको बता रहा हूँ, हम दोनों के बीच में ये सीक्रेट है कि पैट्रिक का जो होमवर्क था वो पैट्रिक खुद बनाया, जिसकी जानकारी पैट्रिक को नहीं थी। तो आप लोग भी जो बच्चे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे पे ध्यान दें कि अगर बच्चा समझ नहीं रहा है, होमवर्क बनाने में उसको परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको किसी तरह से समझाएं कि वो अपना होमवर्क खुद करे, उसमें अच्छे हैबिट डेवलप करें। और एट लास्ट, इफ you all have any problem in the whole chapter, frankly ask me in comment or call me on my mobile number 9472880865. Thank you.